ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Good morning, children. How are you all? I hope you are all fine. बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? हमारे क्लासेस को देख रहे हो ना? इससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो ना? So, welcome to Samveda e-classes. Okay, children? What is my name? Do you remember my name? Yes, remember my name. So, I am Shujait Ullah Khan, working at Government Urdu Higher Primary School, Matmari, from Raichur district. Okay, children? So, we are engaging the class 4th, subject second language English, unit 6, forming, under that grammar part, textbook activities, part 7 of 8. The lesson name is Farmer and his friends. आज हम आपकी दर्सी किताब के चौथी के इंग्लिश सब्जेक्ट सेकेंड लैंग्वेज के यूनिट नंबर 6 फॉर्मिंग में जो ग्रामर के हिस्से हैं, टेक्स्ट बुक के एक्टिविटीज है, उसको सीखने जा रहे हैं. इस सबक का ये 7वां हिस्सा है 8वें हिस्से में से, यानी कि पार्ट 7 ऑफ 8. ओके चिल्ड्रन, प्लीज रिमेंबर what you have to do. Yes, be ready with your textbook, notebook, pencil, eraser and pen. See, today's topic we are going to learn previous class homework, whole chapter revision, grammar activity on page number 86 and on 92, articles a and the, activities, homework. होमवर्क से स्टार्ट होती है हमारी क्लास, होमवर्क पर खत्म होती है. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द रिडल्स एंड फाइंड द आंसर्स फॉर योर फन. मैंने लास्ट क्लास में आपको फन के तौर पर, मजे के तौर पर 3 सवाल दिए थे. आपने इन 3 सवालों को पढ़ा होगा. मैंने आपको 3 सवालों का तर्जुमा भी करके आपको सुनाया था. आपको इस सवाल के जवाब आज देने हैं. कौन देगा पहले सवाल का जवाब? तुम यस, सभी देंगे. यस, कोई एक बताइएगा. हाँ, वेरी गुड. पहले सवाल का जवाब क्या है? गाजर. इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? कैरेट. स्पेलिंग CARROT, कैरेट. यहाँ पर आपने लिखा है. वेरी गुड. सीधा सेकेंड क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू टेल द आंसर दैट फ्रूट ग्रुप? यस, वेरी गुड. ऑरेंज. कलर भी है और फ्रूट का नाम भी है ऑरेंज. नारंगी कहते हैं उर्दू में. वेरी गुड. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, हु इज गोइंग टू टेल? ओ, एवरीबॉडी. डू यू लाइक दैट वन? यस. व्हाट वाज दैट? चिल्ली. CHILLI, चिल्ली. See the answers here. I am in the vegetable group. I grow under the ground. I can be eaten raw or cooked. I help keep your eyes healthy. I am orange in color. Who am I? Answer is carrot. I am in the fruit group. I am a type of citrus fruit. You can squeeze me to make juice. I am the same color as my name. Who am I? I am orange. Very good. I am green or red. I am spicy and hot. I am in the vegetable group. Who am I? And I begin with the letter C. Answer is chilli. I am chilli. CHILLI, chilli. Okay, you all written the correct answers. Give them a big claps. अपने आप तालियां मार लीजिए आप. So, we will move to the next previous class revision. Now, I am going to tell from the beginning of the lesson. इस lesson में सबसे पहले क्या हुआ? मैंने बताया था ना, सबक को एक मर्तबा पढ़कर आइए. तो ये है सबक. तो मैं क्या है, सबक को पूरा आज आपको एक मर्तबा सुनाऊंगा. A farmer by name Hanumanta lived in a village.
There were totally 4 members in his family. His and his wife and 2 daughters. किसान रहता था हनुमंता, वो अपनी फैमिली के साथ विलेज में रहता था। उस फैमिली में 4 मेंबर्स थे, हनुमंता खुद और उसकी बीवी और उसकी 2 बेटियां। He had a small farm. Under that he had 2 cows, 2 sheep, a hen and a cock. He loved them with his heart. और इसके साथ साथ, इसकी फैमिली के साथ साथ ये पालतू जानवर भी पाल रहा था। उसमें 2 cows, 2 sheep, 1 hen and 1 cock. And he loved them with his heart. दिल से चाह रहा था, वो दिल से चाहता था उनको, और उन्हें कहाँ रखा था? स्मॉल फार्म में रखा था। Okay children, see here. One day the farmer went to the sheep and said, "Good morning, Mr. Sheep," and asked, "How are you?" The sheep in response nodded, replied, and said, "I am fine, thank you, master." The farmer asked the sheep to call him friend, and the sheep nodded in response. Nodded means मुंडी हिलाना, response में जवाब देते हुए। क्या बोला? एक दिन क्या है, किसान बकरों के पास गया। जाने के बाद उन्हें गुड मॉर्निंग बोला और कैसे हैं पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हम अच्छे हैं मास्टर, आप कैसे हैं, शुक्रिया। फार्मर ने कहा, नहीं, मुझे मास्टर नहीं फ्रेंड बोल के पुकारो। तो शिप रेस्पॉन्स में सर हिलाने लगे, ठीक है। द शिप आस्क्ड हिज फ्रेंड टू शेयर द wool from his body because it has grown up to full size and sell it at the market so that the farmer can get some money. बच्चों, ये नोट्स आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, शिप अपने दोस्त को बोल रहे हैं, हमारा जो उलन है, वो बाला जो जिस्म पर हैं बकरों के, वो बहुत बढ़ गए हैं, तू उन्हें शेयरिंग द वूल कट कर ले, और क्या है, कट कर लेकर जाकर क्या है, बाजार में मार्केट में बेच दे, जिनसे उनको क्या है, थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। After listening to the sheep, Hanumanta smiled and patted them gently on the back. ऐसा पीठ पर थपथपाया, मारा नहीं उन्हें क्या किया, सिर्फ ऐसा थपथपाया। हम जब खुश होते हैं शाबाशी देने के लिए तो पीठ पर ऐसा थपथपाते हैं या पर सर पर हाथ रखते हैं। तो क्या है, इनकी ये बात सुनकर, यानी कि अपना जिस्म से उलन काट कर ले जाकर जो बेजालो बोल रहे, इसी से वो खुश होकर स्माइल किया और क्या है, उनकी पीठ पर थपथपाया धीरे से। ओके बच्चों, सी द नेक्स्ट। नाउ हनुमंता वेंट टू द काउस। बिफोर ही कुड आस्क और से एनीथिंग, द काउस सेड, फ्रेंड, यू हैव गिवन अस एनफ फूड, यू कैन सेल मिल्क एट द मार्केट। अब क्या है, हनुमंता किसके पास गया, काउस के पास। यस, वेंट टू द काउस। बिफोर ही कुड स्पीक, कुछ बोलने से पहले, एनीथिंग, कुछ वर्ड्स अपने मुंह से निकालने से पहले ही काउस बोल उठे, दोस्त, यू हैव गिवन अस एनफ फूड, तुमने हमने खाने को बहुत कुछ दिया है, अब हमारा दूध ले जाकर मार्केट में बेच लो। यू विल गेट सम मनी फ्रॉम दैट, तुम्हें उससे भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे। हनुमंता बिकेम इमोशनल आफ्टर लिसनिंग टू दीज वर्ड्स। हनुमंता क्या है, इमोशनल हो गया, भावुक हो गया। ऐसी बात सुनकर उसका दिल पिघल गया। वो क्या है, खुशी खुशी से, he put his both arms under around their neck and kissed them on their forehead. वो उन्हें चुमने लगा, उन्हें लपट लेने लगा। किन्हें, काउस को, गायों को। So now the hen and the cock saw Hanumanta coming towards them, so the hen said, "Fast." अब क्या है, हनुमंता पहले बकरों के पास गया, बाद में गायों के पास गया, अब क्या है, मुर्गी और मुर्गे के पास जा रहा है। उन्हें आता हुआ देखकर सबसे पहले मुर्गी बोल उठी। क्या बोल उठी, फ्रेंड, आई हैव लेड सम एग्स, यू टेक देम एंड फीड योर डॉटर्स। इस मेरे पास क्या है, थोड़े अंडे हुए हैं, मैं अंडे रखी हुई हूं, वो लेकर जाकर अपने मुर्गियों को, अपने बेटियों को, डॉटर्स को आप खिलाइए। द कॉक सेड, सॉरी फ्रेंड, आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग। मुर्गा बोलने लगा, सॉरी दोस्त, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास देने के लिए आपको क्या भी नहीं है। बट आई वेक यू ऑल एवरी मॉर्निंग एट द राइट टाइम,
लेकिन मैं सबको अपनी बांग के जरिए से, अपनी क्रय के जरिए से क्या है, मैं आप सबको हर सुबह 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 मैं आपको जगा दूंगा, ये मेरा काम है। इतना बोलते हुए किसान क्या है, उन्हें भी लिपट लेकर, उन्हें भी खुश होकर, उसके बाद क्या है, वो वहां से जाकर उलन, दूध और ये अंडे लेकर जाता है। जाकर क्या करता है, अपनी बेटियों को अंडे खिला देता है पकाकर, और उलन और दूध मार्केट में बेच कर आता है, और जो पैसे आते हैं वो पैसों से वो एक बैल खरीद कर ला लेता है। ये हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में वो लास्ट पैराग्राफ जो है सबक का वो हम पढ़ेंगे। ओके, ये था हमने अब तक जितना पढ़ा अपने 3-4 क्लासों में, उसका मैंने आपको यादा किया, यानी कि रिवीजन किया एक्सप्लेनेशन का। आप इस सबक को अच्छी तरह से, ताकि आप इस सबक को अपने दिमाग में बिठा लें। एक किसान था, हनुमान था, उसके पास उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे, उसके पास पालतू जानवर थे, एक फार्म था, वो उन्हें पाल रहा था। गायों ने उसे क्या कहा, बकरों ने उसे क्या कहा, मुर्गी ने उसे क्या कहा, मुर्गे ने उसे क्या कहा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, नाउ आई एम गिविंग यू वन ग्रामर एक्टिविटी। प्ले दिस गेम, पेज नंबर 86। यहाँ पर ग्रामर की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है बच्चों, GRAMM ये आना है, स्पेलिंग मिस्टेक है। हियर प्लीज ओपन द टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 86। हियर क्वेश्चन इज देयर, प्ले दिस गेम। इस गेम को आप ही खेलना है और आप ही को जवाब देना है। इस गेम में जवाब देने के लिए आपको, आप डिक्शनरी देख सकते हैं, अगर डिक्शनरी नहीं है तो आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको 3 मिनट दिया जाएगा। इस तस्वीर में आपको थोड़े हथियार, औजार नजर आ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। ये आपकी बुक में आपको अच्छा नजर आएगा। तो क्या है ये, यहाँ पर उसके नाम भी हैं, वो नाम के बाजू क्या है, उस तस्वीर को आपको जोड़ना है। तो सम पढ़ेंगे, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ टूल्स ऑफ फार्मिंग इन द वैगन व्हील। एक व्हील है, ये एक आपको टायर नजर आ रहा है, किसका व्हील है ये, हाँ एक व्हील नजर आ रहा है। ड्राई अ लाइन एंड कनेक्ट देम विद देयर नेम्स। यहाँ पर नेम्स है, यू मे रेफर टू ए डिक्शनरी इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पर थोड़े नए वर्ड्स हैं जिसे आपने पहली बार सुना होगा, तो आप इसके माने अगर आपको नहीं मालूम है तो डिक्शनरी में या गूगल में आप सर्च करके देख सकते हैं, और उसके बाद उसकी तस्वीर के पास आप उसको मार्क कर सकते हैं। पहला है PLOUGH वर्ड, इसे हम प्लो पढ़ेंगे। GH साइलेंट है तो प्लग नहीं पढ़ेंगे, प्लो पढ़ेंगे। दूसरा है पिक एक्स है, शावल है, एक्स है, ए पेयर ऑफ शेयर्स है, स्पेड है। यहाँ पर भी 6 तस्वीर है, यहाँ पर भी 6 वर्ड्स हैं। इसे आपको जोड़ने के लिए 3 मिनट दिया जाएगा। ओके बच्चों, आई वेलकम वंस अगेन। सी हियर, आई हैव ब्रिंग यू वन फोटो ऑफ फार्म टूल्स। ओके, हियर पिक्चर्स ऑफ टूल्स ऑफ फार्मिंग। यहाँ पर भी थोड़े पिक्चर्स हैं जो ज़राअत में, काश्तकारी में, मवेशियों को पालने में, घरों की मरामत में वगैरह वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखिए, ये क्या है, सीमेंट, पत्थर, बालू, रेती वगैरह ढकल के ले जाने की गाड़ी है। ये झाड़ों को क्या है, पौधों को पानी डालने का। ये क्या है, कचरा साफ करने का खेतों में, वगैरह 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 बहुत सारे इसमें क्या है, चीजें हैं। इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके घरों में भी इसमें से चंद हथियारें, औजारें आपके पास भी रहेंगी। ओके बच्चों, नाउ सी हियर, मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, उसका जवाब यहाँ पर हैं। आप जो होमवर्क किए हैं उसे आप करेक्शन कर ले सकते हैं। ऐसी तस्वीर का जो है उसका नाम होता है सिक्कल बच्चों। उसे क्या कहते हैं, सिक्कल। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है, टूल्स ऑफ एक फार्मिंग है। टूल्स ऑफ फार्मिंग यानी कि काश्तकारी में, ज़राअत में इसका इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इसे सिक्कल कहते हैं इंग्लिश में। सिक्कल के माने क्या है ये हम देखेंगे। सिक्कल, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑफ हार्वेस्टिंग टूल्स कंसिस्टिंग ऑफ ए मेटल ब्लेड यूजुअली अटैच्ड टू ए शॉर्ट वुडन हैंडल। एक शॉर्ट वुडन हैंडल को मेटल का ब्लेड लगाया जाता है, जिसे काश्तकारी में फसल उगने के बाद उसे काटने में इस्तेमाल होता है, या फिर चारा काटने में भी इसे हम क्या कर सकते हैं,
इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पुराना तरीका है जो आज भी आसानी के साथ चल रहा है बच्चों। इट इज यूज फॉर, इसका यूज क्या है, और इसे पकड़ने के लिए क्या होता है, लकड़ी का एक हैंडल होता है, उसे हम पकड़ सकते हैं आसानी के साथ। इट इज यूज फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ वेजिटेबल्स। देखिए, तरकारियों को काटने के लिए, सही तरीके से काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीरियल क्रॉप्स यानी कि दानों, जैसे कि गेहूं है, चावल है, रागी है, जवार है, बाजरा है वगैरह वगैरह को काटने के, फसल के वास्ते भी, क्रॉप्स के वास्ते भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड कटिंग ऑफ द ग्रास, मैंने बोला ना, घास काटने भी क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड अदर वेजिटेटिव मैटर, यानी कि और भी बहुत सारे जो क्या है, खेत में जो काम है, बागों में जो काम है, यानी कि उसे वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। सीधा नेक्स्ट इमेज, ये आपने देखा होगा, इसे क्या है, गायों के साथ बांधकर भी ले जाते हैं या फिर आदमी भी अपने हाथ से करता है। ये 2 रकम से मिल जाता है आपको, PLOUGH। मैंने बताया ना, इसका स्पेलिंग अलग है लेकिन इसे हम पढ़ते अलग है, इसे प्रोनाउंस अलग करते हैं। इसे हम प्लो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लो। GH, ये 2 वर्ड क्या है, 2 लेटर क्या है, साइलेंट लेटर है, प्लो। ये प्लो। अब इसकी माने देखेंगे। ये प्लो, इसे हल बोलते हैं उर्दू में। क्या बोलते हैं? हल। ये प्लो इज ए फॉर्म टूल फॉर लूजनिंग और टर्निंग द सॉयल बिफोर सीइंग सीड और प्लांटिंग। जिसके पास खेत है वो इसका इस्तेमाल बखूबी जानता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, ये क्या है, खेत में मिट्टी को बीज बोने से पहले, फसल को उगाने से पहले, यानी कि बीज बोने से पहले मिट्टी को लूज किया जाता है इसकी मदद से, यानी कि खोद के लेवल कर लिया जाता है। बाद में क्या है, बीजों को डालने में आसानी होगी तो मिट्टी को खोदने के वास्ते इसे काम किया जाता है। इट मे हैव ए वुडन, आयरन और स्टील फ्रेम विथ ए ब्लेड अटैच टू इट। यहाँ पर ये लकड़ी का है तस्वीर, इसे लकड़ी का भी होता है, लोहे का भी होता है, स्टील का भी फ्रेम होता है जिससे ब्लेड अटैच होता है। ये ब्लेड जो है नीचे, ये अटैच कौन से भी एक हैंडल से होता है। इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके इस्तेमाल करने के हम ना फायदे क्या है, देखिए। पहला है लूजनिंग ऑफ सॉयल कैन इंप्रूव एयर सर्कुलेशन। जैसे कि हम मिट्टी को खोद देते हैं इसकी मदद से, तब क्या है, हवा जो मिट्टी में बीज को जो हासिल होनी रहती है वो आसानी से मिल जाती है। उसके बाद दूसरा है द रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉयल दस होल्डिंग द प्लांट फर्मली। मिट्टी खोद देने से अच्छा अंदर तक खुदाई हो जाती है। जब बीज हम डाल देते हैं, जब वो पौधा होता है या फिर बड़ा होकर पेड़ होता है, तब वो अंदर से ही पैदा होता है, जिससे उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और जमीन के अंदर से अच्छा मजबूती से अपने आप को जकड़ के रखी रहती हैं। ये भी एक इसका फायदा है। और तीसरा फायदा, इट एनहेंसेस द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। बच्चों, इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हुए एक बीज बो देते हैं तो उसे सही तरह से पानी, हवा, टेम्परेचर नहीं मिलता सूरज का। लेकिन जब प्लोव की मदद लेते हैं, इसे खुदाई करते हैं, हल चलाते हैं खेतों में, तब क्या है, पानी भी सेफ अंदर रहने के वास्ते अच्छी जगह हो जाती है। ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं आपको चंद बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ये है प्लो। सो दिस इज द अनदर टूल्स ऑफ फार्मिंग। पिक एक्स, ये क्या है, पिक एक्स है। ये आप देख रहे हैं, ये कुल्हाड़ी नहीं है, ये पिक एक्स है। ये पिक एक्स के माने क्या है, देखिए। ये पिक एक्स इज ए large tool consisting of curved pointed piece of metal with a long handle joined to the middle। यहाँ पर इसके मिडिल में एक हैंडल है लकड़ी का, इसे इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर क्या है, एक लंबा सा ब्लेड है, कर्व ऐसा झुका हुआ, जिससे खुदाई में मदद मिलती है। हमने सिक्कल में छोटा हैंडल देखा था, अब यहाँ पर पिक एक्स में एक बड़ा हैंडल हमें नजर आई दे रहा है। ये क्या है, आयरन से बनाया जाता है। पिक एक्स आर यूज, ये किस लिए यूज किया जाता है, फॉर ब्रेकिंग अप रॉक्स और द ग्राउंड। ये भी ग्राउंड की खुदाई में इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर इसे पत्थरों को फोड़ने में, इस खेत में जो जो चीजें आड़े आ जाती हैं फसल उगाने में, तब क्या है, इसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें, इसकी शॉर्प नोक रहती है, इससे क्या है, पत्थर आसानी से फूट जाते हैं और ग्राउंड में खुदाई भी हो जाती है। देखो बच्चों, इसका इस्तेमाल धीरे से, ध्यान से करना पड़ता है।
आप कभी जब खेत में जाएंगे तो इन सब टूल्स को फार्मिंग के आप देखेंगे। ओके, सीधा नेक्स्ट टूल, टूल्स ऑफ फार्मिंग में AXE, एक्स, ये सबके घरों में रहता है, जिससे हम क्या कर, ये आप सबके घरों में है ना? जी हाँ, मेरे घर में भी है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। हम इससे क्या है, लकड़ी वगैरह को चीर कर झाड़ों को कतर सकते हैं और लकड़ी वगैरह को हम क्या है, पीसेस में तब्दील कर सकते हैं। देखिए इसका माना, एक्स इज एन एग्रीकल्चरल टूल यूज्ड मेनली फॉर शेपिंग, स्प्लिटिंग एंड कटिंग ऑफ वुड। ये क्या है, एक एग्रीकल्चरल टूल है, यानी कि ज़राअत का एक हिस्सा है। ये भी एक औजार है। इसे हम शेप करने के लिए, झाड़ों को स्प्लिट करने के वास्ते, और क्या है, लकड़ियों को कट करने के, मैं बोला इसका मेन काम क्या है, कटिंग ऑफ वुड है। लकड़ियों को कतरने में इसका फायदा होता है, इसका इस्तेमाल होता है। सीधा नेक्स्ट इमेज हियर, पिक्चर्स ऑफ टूल्स ऑफ फार्मिंग में ए पेयर ऑफ shears, एक खैंची है, जो मामूली खैंची जो घरों में रहती है वो नहीं है। ये क्या है, फार्मिंग की खैंची है, जिसे क्या इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ए पेयर ऑफ shears इज ए गार्डन टूल लाइक ए वेरी लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स। एक बड़ी किस्म की सीजर है, खैंची है, जो गार्डन में इस्तेमाल की जाती है, या फिर उलन को, बकरे के ऊपर जो उलन है उसे भी कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। shears आर यूज्ड स्पेशली फॉर कटिंग एजेस, ट्रिम द shrubs विद द shears, कटिंग फैब्रिक्स, कटिंग एनिमल्स फ्लीस टू मेक वूल। देखिए मैंने बताया ना, जानवरों का जो उलन है उसे कट करने में इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े कपड़ों के पीसों को, और क्या है, बेलों को, पौधों को डिजाइन करने के लिए, उसके एजेस को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गार्डन में खूबसूरती नजर आती है। पौधों को कोई भी डिजाइन इसका हम बना सकते हैं खेत में या बाग में। ओके बच्चों, सीधा नेक्स्ट एंड द लास्ट टूल्स ऑफ फार्मिंग हियर। बहुत सारे टूल्स हैं, औजारा, हथियारा हैं फार्मिंग के। मैंने 6 लिया है, इसके बारे में 6 मैं आपको समझा रहा हूं, 6 या 7 हैं। स्पेड, ए स्पेड इज ए टूल प्राइमरली फॉर डिगिंग, कॉम्प्रेसिंग ए ब्लेड, एक ब्लेड है, इसे खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी हैंडल वुडन लकड़ी का है, टिपिकली कर्व्ड एंड मोर पॉइंटेड देन दैट ऑफ ए कॉमन शावल। इट इज यूज्ड फॉर डिगिंग, देखिए स्ट्रेट यानी के सीधा मिट्टी ऐसा निकालने के लिए, एज्ड होल्स आर ट्रेंचेस, स्लाइसिंग एक्सेट्रा। इसे काटने के लिए, क्या काटने के लिए, मिट्टी को बराबर लेवल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो होल्स होते हैं उसे भरने भी इसका इस्तेमाल किया जाता है खेत में। ओके, नाउ हियर वन एक्टिविटी इज देयर, आई एम गोइंग टू रीड एंड आई एम गोइंग टू आंसर दैट वन, यू हैव टू लिसन केयरफुली। ये एक आपका एक्टिविटी है, लेकिन इसके आंसर मैं ही बोल दूंगा आपको। माई फादर प्लोस द लैंड विथ ए, हम जमीन को खोदते हैं किससे, आंसर है प्लो। शिवू कट्स डाउन द ट्री विथ एन एक्स, यस एक्स। गुंडू डिग्स द लैंड विथ ए स्पेड, स्पेड से क्या है, मिट्टी खोदी जाती है। आई ट्रांसफर द डर्ट टू अदर प्लेसेस विथ ए शावल, शावल से क्या है, कचरा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। माई नेबर यूजेस ए डैश टू कट ऑफ द वूल फ्रॉम द शिप। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक और आंसर भी गलत है। यहाँ पर आंसर आना है क्या है, ए पेयर ऑफ shears, सीजर है। सिद्धप्पा रीव्स द क्रॉप्स विथ ए पिक, एक्स है। क्या है आंसर इसका, इसका आंसर है सिकल। ओके, यहाँ भी आंसर गलत है। सीधा नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू डील विद द वन ग्रामर एक्टिविटी, दैट इज वन पार्ट्स ऑफ स्पीच इज देयर, आर्टिकल्स। इसमें हम ए एन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, द के बारे में इसमें थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। इसका इस्तेमाल कैसा किया जाता है, कहाँ किया जाता है, मैं बता दूंगा। थोड़ा थोड़ा मैं इसे आपको ब्रीफली आपको समझा दूंगा। इन द इंग्लिश ग्रामर, ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई ए नोन इज नोन एज एन आर्टिकल। नोन को मॉडिफाई करना, नोन को पहचानना, नोन को बताने के लिए जो आर्टिकल इस्तेमाल, जो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आर्टिकल। यहाँ इसकी मिसाल दी जाएगी। एन आर्टिकल इज ए वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई ए नोन विच इज ए पर्सन, आदमी हो सकता है, प्लेस, थिंग
ऑब्जेक्ट और आइडिया। टेक्निकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। नाउन के तारीफ करने में जब इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं विच इज एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन। नाउन के पहले में जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। दो किस्म के आर्टिकल्स हैं, पहला है डेफिनेट और दूसरा है इनडेफिनेट। देख लीजिए पहला डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स टेल्स अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन इन इंग्लिश, यानी कि खास पर्सन के बारे में या खास ऑब्जेक्ट के बारे में इसे बताया जाता है। देयर इज ओनली वन ए स्पेसिफिक पर्सन इन इंग्लिश, देयर इज ओनली वन डेफिनेट आर्टिकल, वन। द डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक है जो सिर्फ खास चीजों को, खास जगहों को, यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन नहीं, स्पेसिफिक प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट आना है, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। द का इस्तेमाल, जैसे कि एक नदी का नाम है तो द रिवर गंगा, द कावेरी, ताजमहल, द ताजमहल, ऐसा इस्तेमाल किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल का वर्ड द का। द इनडेफिनेट आर्टिकल इज द वर्ड ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल दो है, ए और एन। इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू डिफाइन इट एज समथिंग नॉन स्पेसिफिक। ये खास नहीं है, जैसे कि लड़का है, ए बॉय, लड़की है, ए गर्ल, स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट, ये खास नहीं। यानी कि बॉय मीन्स लड़के, सभी को लड़के कहते हैं। खास कहाँ था, जब उसका नाम आता है, जैसे कि रोशन, मिसाल वो एक खास है, रोशन एक नाम रहा, सभी का नाम रोशन नहीं रहता ना, वैसा ही एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो स्पेसिफिक नहीं रहता लेकिन नाम तो रहता है नाउन का। यानी कि पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकती है, चीज भी। जैसे कि स्कूल है, एक ही स्कूल नहीं है, स्कूल का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन स्कूल तो एक ही रहती है। थोड़े रूल्स हैं इसको इस्तेमाल करने के, मैं बताता चलूं। व्हेन टू यूज ए, एन और द। ए और एन और द को कैसा इस्तेमाल करते हैं, रिमेंबर इन वर्ड इन ऑर्डर टू यूज ए, एन एंड द properly you must know whether or not a noun is count or non count। यानी कि काउंटेबल नाउन है या नॉन काउंटेबल नाउन है, इसे आपको पहले मालूम कर लेना है। काउंटेबल नाउन क्या होता है और नॉन काउंटेबल नाउन क्या होता है, इसकी एग्जांपल भी है यहाँ पर। ए काउंट नाउन इज द सेम ऑफ समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, यानी कि इसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक एक्सेट्रा। तो क्या है, काउंट कर सकते हैं ना, बुक कहते हैं। अब शर्ट है, 1 शर्ट, 2 शर्ट, 3 शर्ट, 4 शर्ट, वैसा। अब यहां पर देखिए, ये नॉन काउंट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी चीजें हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मिल्क है, दूध को कैसे हम गिन सकते, वो कहता है। फ्लोर, आटा है, उसे हम कैसे गिन सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम, आजादी मिली, हमने आजादी तो मिल गई लेकिन हमें उसे माप सकते नहीं, तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते। उसके बाद जस्टिस है, यानी कि इंसाफ है, इंसाफ को भी हम क्या कर सकते हैं, नहीं तोल सकते, नहीं मान सकते, नहीं मालूम कर ले सकते। ये थोड़े रूल्स हैं इस्तेमाल करने के। और थोड़े रूल्स, यूज ए और एन विथ ए सिंगुलर काउंट नाउन। ए और एन को सिंगुलर काउंट नाउन के सामने इस्तेमाल किया जाता है व्हेन यू मीन वन ऑफ मेनी, एनी, इन जनरल, और इफ दीज वर्ड स्टार्ट्स विथ ए ओवल साउंड यूज्ड एन और कॉन्सोनेंट साउंड यूज या। फॉर एग्जाम्पल आपको आसानी से समझा दूं, ओवल साउंड जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उसके सामने आपको एन इस्तेमाल करना है। बाकी के जो लेटर्स हैं जिससे वर्ड शुरू होते हैं उनको आप ए से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो सिंगुलर काउंट नाउन रहे तो। यूज द विथ एनी नाउन व्हेन द मीनिंग इज स्पेसिफिक। मैंने बताया ना, द कहां इस्तेमाल होता है, जब नाम स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द नाउन नेम्स द ओनली वन और वन ऑफ ए काइंड। मैंने बताया ना, सिर्फ एक नाम होता है, जैसे बताया मैंने ताजमहल, ये ताजमहल, एन ताजमहल नहीं आता, द ताजमहल आता है। ओके बच्चों, हियर ओपन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 92। हियर वन एक्टिविटी इज देयर फॉर यू। रीड द पिक्चर, यूज ए और एन इन द ब्लैंक्स, यूज एन बिफोर द साउंड्स ए, ई, आई, ओ, यू। ओ, ई, आई, ए, यू है। यहाँ पर ओवल्स दिया गया है, ओवल्स के सामने आपको ए और एन, दा का इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर, ये मैं ही बता देता हूं। इट इज रेनिंग, रत्ना इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। एन क्यों आया, ए, ई, आई, ओ, यू है, तो एन कहां पर आता है, ओवल्स के पहले आता है, तो यहाँ एन है।
It is dash lovely place. There is dash lake. Can you see dash old house near the lake? We walked through dash forest. It was not easy walk. Suresh saw dash elephant. He took dash picture of it. It was dash cold day. I wore dash sweater. बच्चों, मैं यहाँ पर आपको जवाब दे रहा हूं. आपके जवाब आपने लिखे होंगे, वो सही रहेंगे. यहाँ पर आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए. ये था एग्जाम्पल था पहला. इट इज ए लवली प्लेस. ये लवली प्लेस. देर इज ए लेक. यहाँ लेक है, तालाब का नाम नहीं है. नाम रहता तो द आता था, लेकिन यहाँ क्या है, लेक है. कैन यू सी एन ओल्ड हाउस. ओ रहने से एन आया है. नियर द लेक. वी वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट. इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. ई आने से एन आया है. सुरेश saw an elephant. He took a picture of it. It is a cold day. I wore a sweater. बच्चों, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं. आप ये अपनी किताब में ही लिख लीजिए, बाद नोट्स में लिख लीजिए. सीधा नेक्स्ट होमवर्क हियर. There are some words in red basket. You and your friend will pick words from it and put them in green basket. Add a or an before you put them in the green basket. बच्चों, और एक सवाल है. Name the different types of tools used in the farming. एक्सप्लेन एनी 3. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग के टूल्स को लिखना है और कोई 3 या 4 एक्सप्लेन करना है. और यहाँ भी आपको ए और एन का इस्तेमाल कैसा करना है वो यहाँ पर जवाबात लिखना है. हम मिलेंगे पिछली क्लास में. नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे. ओके चिल्ड्रन, आई एम कंक्लूडिंग माई क्लास. आई एम शुजातुल्लाह खान, वर्किंग एट गवर्नमेंट उर्दू HPS मटमारी फ्रॉम रायचूर डिस्ट्रिक्ट. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.